A very good morning, children. Children, this is your GK period, so I would request everyone to kindly take out your GK books and open page 46. Children, in the previous session we did this chapter Touch of Spice. I hope you understood and completed the exercise. Today we are going to continue with the new chapter, that is learning badminton. How to play badminton. These are the steps given, how to play the badminton and how to hold the racket, how a cork of a badminton is made. These things are mentioned in this chapter, and who all are the famous players of badminton in India. So children, as you can remember, once I had sent you a video link of famous Indian sports stars, right? If you remember, if those who didn't see that video, kindly go through my YouTube channel and there you can find that video of Indian sports stars. So there I had explained you about badminton and how it is played. So now in this chapter I am going to just recapitulate those things. Alright, so let's begin. Badminton is played with a racket and a special feathered shuttlecock. So most of you children know what is a badminton sport and how it is played. It is played with racket and shuttlecock, right? This is a racket, you can see, right? And this is a shuttlecock. It can be played in a court, on a lawn or indoors. So you can play it at the lawn or you can play it at the terrace. So right, it is indoors also and you can play it in the lawn also. Okay? It can be played by 2 people or by 4 people forming 2 teams, each with 2 players. So here in this picture you can see this is a lawn. दिस इज नेट. बैडमिंटन जब हम खेलते हैं तो नेट लगाते हैं, राइट? एंड यहाँ पे सिर्फ 2 प्लेयर्स ही खेल रहे हैं, ठीक है? तो बैडमिंटन में मिनिमम 2 प्लेयर्स होने चाहिए बेटा एंड मैक्सिमम 4 प्लेयर्स. जब 4 प्लेयर्स होंगे तो 2 प्लेयर्स इधर होंगे, 2 प्लेयर्स इधर होंगे, राइट? 1 प्लेयर यहाँ पे खड़ा होगा, 2nd प्लेयर यहाँ पे, 3rd यहाँ पे, 4th यहाँ पे. ऑल राइट, सो मैक्सिमम 4 प्लेयर्स कैन प्ले बैडमिंटन एट वन टाइम and minimum 2 players, right? It is a team sport. There is a net in the center of the court that divides the court into half. So this whole green pattern you can see, this is the court and the net divides the court into 2 halves. First half is here, second half is here. बीच में ये net लगाते हैं, equal distance रहता है दोनों तरफ से. All right. So Pam starts the game by hitting the shuttlecock with her racket. She is the server. बेटा जो सबसे पहले गेम स्टार्ट करता है, जो सबसे पहले कॉक लेके हिट करता है अपने रैकेट से, दैट इज नोन एज द सर्वर, राइट? सर्वर कौन है? जो सबसे पहले कॉक को अपने रैकेट से हिट करेगा, वो सर्वर रहेगा, ठीक है? ये बैडमिंटन रैकेट है, ये पैम है. पैम ने कॉक को हिट किया, यहाँ पे शटल कॉक है, राइट? सो ये क्या है? सर्वर, ठीक? इसको सर्वर बोलेंगे. ये सेंटर लाइन है, दिस लाइन डिवाइड्स द कोर्ट इनटू हाफ. यानी अगर 2 प्लेयर्स खेल रहे हैं ईच साइड, टोटल 4 प्लेयर्स, 2 इधर एंड 2 इधर, तो 1 प्लेयर इधर रहेगा, 1 प्लेयर इधर रहेगा, ठीक है? देखिए लिखा है साइड लाइन्स फॉर डबल्स, यानी डबल्स मीन्स 2 प्लेयर ईच साइड. ओके, इन डबल्स मैच अ प्लेयर मेक्स अ फॉल्ट इफ द शटल गोज बियॉन्ड दिस लाइन. तो आप देख सकते हो ये पूरा ये लाइन दी गई है, ये वाली. तो शटलकॉक ना इधर नहीं आनी चाहिए बेटा, इस लाइन के इधर नहीं आनी चाहिए. सिमिलरली इस लाइन के इधर शटलकॉक नहीं गिरनी चाहिए. जब आप हिट कर रहे हैं रैकेट से शटलकॉक, तो इस लाइन के इधर नहीं गिरनी चाहिए और ना ही इस लाइन के इधर गिरनी चाहिए. ऑल राइट. अब कैन यू प्ले बैडमिंटन आउटडोर्स ऑन अ विंडी डे? नो बेटा, विंडी डे में हम बैडमिंटन आउटडोर्स नहीं खेल सकते. वाई? बिकॉज
शटलकॉक इतनी लाइट वेट होती है, इतनी हल्की होती है कि विंड उसे उड़ा ले जाएगी। जहाँ आप टारगेट करना चाहते हो, जहाँ आप शटलकॉक को हिट करके फेंकना चाहते हो, वहाँ पे नहीं गिरेगी, वो कहीं और गिरेगी। वाई? बिकॉज विंडी डे में बहुत तेज़ हवा चलती है, तो उससे शटलकॉक कहीं भी जाके उड़ के गिर सकती है। दैट इज़ वाई विंडी डे में हम बैडमिंटन नहीं खेल सकते। Back boundary. This marks the end of the playing area. It also serves as the long service line for single matches. तो बेटा ये जो है, ये बाउंड्री दी गई है ना वाइट से, ये आपका कोर्ट का डिफाइन करिए। दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द कोर्ट। इसके बाहर आपको नहीं जाना है, ठीक। अब हम येलो बॉक्स पढ़ेंगे। टिडबिट्स। टू मेक अ शटलकॉक, यानी शटलकॉक को बनाने के लिए 16 गूज फेदर्स। चिल्ड्रन आपने पढ़ा होगा कि गूज एक एनिमल है, उसके बर्ड है, इनफैक्ट गूज एक बर्ड है, तो उससे 16 फेदर्स जब हम निकालेंगे तो उससे कॉक बनेगी। ऑलराइट, जो शटल कॉक है वो 16 गूज फेदर्स से अटैच करके एक कॉक बनती है। You can also have a shuttlecock made of nylon. Nylon is a artificial fabric. You can say cloth material. उससे भी shuttlecock बन सकती है. Right? We have completed this page 46. Now coming to page 47. Here are some famous Indian badminton players. बेटा ये चारों आप जिनकी भी पिक्चर्स देख रहे हैं, इमेजेस देख रहे हैं, these are Indian badminton players who have represented India at the international level. All right, can you name them? Use the help box given below. बेटा आप इनको तो जानते होंगे, ये साइना नेहवाल है। ये मैंने आपको जब मैंने आपको इंडियन स्पोर्ट्स स्टार्स पढ़ाया था उसमें भी पढ़ाया था कि सानिया नेहवाल है। और आप इनको भी जानते हो, पीवी सिंधु। राइट, ये भी आपके इंडियन स्पोर्ट्स स्टार्स में जब मैच द फॉलोइंग था आपका चैप्टर जीके में इंडियन स्पोर्ट्स स्टार्स, तब मैंने आपको इन दोनों की पिक्चर्स दिखाई थी। राइट, सो ये पीवी सिंधु है, ये साइना नेहवाल है। राइट, आप यहाँ से स्पेलिंग्स देख सकते हो, यहाँ पे स्पेलिंग्स दी हैं, आप इसमें से देख के यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। सेकंड पिक्चर इज ज्वाला दत्ता। ठीक, ज्वाला दत्ता है, इनकी भी स्पेलिंग यहाँ पे लिखी है। ये भी फेमस बैडमिंटन प्लेयर हैं। और ये है श्रीकांत किदम्बी। बेटा श्रीकांत की स्पेलिंग यहाँ पे लिखी है, आप यहाँ से देख के ये फिल कर सकते हो। राइट, सो moving to the tidbits on page 47. Badminton is a part of the Olympic Games. ठीक, ओलंपिक गेम्स होते हैं बेटा, इंटरनेशनल लेवल के ओलंपिक गेम्स होते हैं, उसमें बैडमिंटन पार्ट है, वहाँ पे ओलंपिक गेम्स में बैडमिंटन खेला जाता है। थॉमस कप एंड ऊबर कप आर द अदर फेमस बैडमिंटन कॉम्पिटिशन्स। सो बेटा जो भी बैडमिंटन कॉम्पिटिशन्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो अगर आप उसमें पार्ट लोगे, तो अगर आप फर्स्ट रैंक आओगे तो थॉमस कप एंड ऊबर कप आपको एज अ विनर ट्रॉफी मिलता है। बैडमिंटन इज डिराइव्ड। अब बैडमिंटन ये वर्ड कहाँ से आया? बैडमिंटन इज डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम अ गेम नोन एज पूना विच वॉज प्लेड बाय ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स स्टेशन्ड देयर इन द 1860s। यानी 1860s में, यानी ईयर 1860s में ब्रिटिशर्स जो थे वो पूना गेम खेलते थे, तो पूना से ही बैडमिंटन को डिराइव किया गया। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या दे रहे हैं। व्हेन द शटलकॉक कम्स टू रोहन ही विल हिट इट बैक टू पैम, ही इज द रिसीवर। तो अब सर्वर और रिसीवर, ये दो टर्म्स आपने मेन देखे होंगे इस पिक्चर में। पैम शटलकॉक को सबसे पहले हिट कर रही है रैकेट से, तो ये सर्वर हुई। ठीक है, हिट करके रोहन के पास गया। राइट, तो रोहन उसको हिट बैक करेगा, तो रोहन ने रिसीव किया, तो रोहन कौन होगा? रिसीवर। राइट, और इस लाइन के बाहर आप नहीं जा सकते सिंगल्स मैचेस में। जब एक एक प्लेयर खेल रहा है ऑन ईच साइड, तो आप इस लाइन के बाहर नहीं जा सकते। वाई? बिकॉज फिर फॉल्ट हो जाएगा। ठीक, तो सिमिलरली इस लाइन के भी आगे आप नहीं जा सकते और ना इस लाइन के बाहर जा सकते। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको समझ में आया हो ये चैप्टर, एंड कंप्लीट द एक्सरसाइजेज। ये आप 4 पिक्चर्स हैं, उनके नेम्स लिख लीजिएगा, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। सो अगर कुछ भी नहीं समझ आया बेटा, कुछ भी क्वेरीज हो या डाउट्स हो, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में यू कैन आस्क मी। ठीक, ऑल राइट, टिल देन थैंक यू सो मच चिल्ड्रन एंड हैव अ नाइस डे।